दिस इज अ गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजी, दिस 5 मिनट रूल। सब मेहनत कर रहे हैं, एवरीवन इज वर्किंग हार्ड, लेकिन जो स्मार्टली एक्ट करेगा वही कंपटीशन में दूसरों को बीट करके आगे निकल जाएगा। आपने 25, 30, 40 मिनट्स एट अ स्ट्रेच पढ़ना है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन एंड देन टेक अ शॉर्ट ब्रेक। आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, देन यू विल नॉट बी रिग्रेटिंग इट ऑल। A healthy body bears a healthy mind. All the future doctors, all the MD-CAT aspirants, are you struggling to balance study time with other commitments? Are you feeling stressed out? क्या आपको इस चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है कि मेरा कंपटीशन लाखों लोगों के साथ है, क्या मैं मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज में एडमिशन सिक्योर कर पाऊंगा? सो हेयर इज़ दिस वीडियो फॉर यू। इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि मैं आपको ऐसे 7 टाइम सेविंग हैक्स बताने वाली हूँ जो ना सिर्फ आपको स्मार्टर बनाएंगे, बिकॉज दिस इज़ द टाइम कि सब मेहनत कर रहे हैं, एवरीवन इज़ वर्किंग हार्ड, लेकिन जो स्मार्टली एक्ट करेगा वही कंपटीशन में दूसरों को बीट करके आगे निकल जाएगा। सो आई विल बी टेलिंग यू 7 टाइम सेविंग हैक्स। आप वीडियो को स्किप नहीं करें, पूरी देखें, एंड बिलीव मी, इफ यू विल अप्लाई दीज 7 टाइम सेविंग हैक्स इन योर लाइफ दैट I have already done in my life, not only you will be able to ace your MD-CAT exam, but also you will be successful in your professional life, and you will be able to make a good work-life balance also, as you need to work smarter, not harder. So let's start these 7 time saving hacks. Number 1, set clear goals. So you have to begin by outlining your study objectives and then breaking them down into manageable tasks, whether like it's mastering biology or acing chemistry or other subjects. So you need to have clear goals that will help you to stay focused. Write down your goals. Then second is you need to create your to-do lists. Like what I do, I make monthly to-do lists, weekly to-do lists and daily to-do lists. Up in the scenario of the MD-CAT, you need to write down your monthly bigger chunks, like जो chapter या कोई subject that you will be covering, and other important commitments of life also. As it is said that palest ink is better than the brightest memory. So you must write it down. Then coming to the weekly to-do list, break down your monthly study targets into 4 weeks and write them down कि weekly आपने कैसे करना है। जो आपका monthly target है उसको आपने weekly chunks में कैसे achieve करना है that monthly target. And also prioritize your study tasks and allocate specific time slots for each subject. Now coming to the daily to-do list. What I do, I make it at night. What I write down everything that I have to do the next day, because it will save you time in the morning so that when you wake up and you know exactly where you have to start. So keeping in your view your weekly tasks, break them down into daily tasks. जो subjects आपने weekly जो आपने कवर करने हैं, जो टॉपिक्स आपने कवर करने हैं, उनको आप 7 days पे डिवाइड करते हैं। एंड आई वुड एडवाइज दैट योर डेली टू डू लिस्ट शुड बी पेस्टेड समवेयर बिसाइड योर स्टडी टेबल, ऑन द कबर्ड, वेयर यू कैन विजुअलाइज इट। और जो टास्क आप डेली टू डू लिस्ट में से करते जाते हैं, जो आपके अकम्प्लिश हो जाते हैं, उनको आप काटते जाएं। And when you will see your accomplished tasks, you will feel so encouraged and motivated. You will feel so good. आपके अंदर एंडोर्फिन्स का एक रश होगा और वो जो स्ट्रेस है ना वो आपका ख़त्म हो जाएगा। Then you will realize कि अगर मैं ये कर सकता हूँ तो इंशाल्लाह मैं MD-CAT बहुत अच्छे मार्क्स में क्लियर करके फाइनली अपना डॉक्टर बनने का ड्रीम भी पूरा कर सकता हूँ। एंड one most important thing, don't forget to incorporate breaks in your schedule. Breaks बहुत important है। Like आपने 25, 30, 40 minutes at a stretch पढ़ना है without any distraction and then take a short break. And this is what a so-called technique that is called Pomodoro technique. Now I will be sharing some pro tips to manage your to-do list. Number 1, be realistic
and don't forget to factor in buffer time for some unexpected events. जब आप अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं उसमें वो मार्जिन ज़रूर रखें कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ जाता है, आप बीमार हो जाते हैं, आपके पेरेंट्स में से कोई बीमार हो जाता है और कोई ऐसा नागुज़ीर काम है जिसको आपको टाइम देना ज़रूरी है, तो वो उसमें एडजस्ट हो सके. स्टे फ्लेक्सिबल, लाइफ हैपन्स एंड स्केड्यूल्स मे नीड एडजस्टमेंट्स. अगर आपने अपनी टू डू लिस्ट में वो मार्जिन रखा होगा, देन यू विल बी एबल टू एम्ब्रेस चेंजेस ग्रेसफुली एंड यू विल बी एबल टू अडेप्ट योर प्लान अकॉर्डिंगली. नंबर 2, स्टार्ट विद द बिगेस्ट और द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क. डेली टू डू लिस्ट में आपको जो सबसे मुश्किल चैप्टर लगता है, जिसको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है, आप सबसे पहले उसको कंप्लीट करें. जब आप उसको अकम्प्लिश कर लेंगे, देन द सेंस ऑफ अचीवमेंट दैट यू विल बी हैविंग इज इमेंस. It will reduce the stress and there would be rush of endorphins again and you will feel really happy and satisfied. Having said that, another pro tip is that do not cluster your challenging task or the biggest task or the tasks that require more time together. Like एक ही दिन में आप 2 या 3 टास्क इकट्ठे नहीं कर लें चैलेंजिंग जिनको ज़्यादा टाइम चाहिए. आप उसको स्प्रेड आउट कर लें. एक दिन में एक कर लें, फिर नेक्स्ट डे पे कर लें, फिर उससे नेक्स्ट डे पे कर लें. स्प्रेड देम ओवर द वीक और मंथ. बिकॉज अगर एक ही दिन में आप सारे चैलेंजिंग टास्क इकट्ठे कर लेंगे या ऐसा कोई चैप्टर या ऐसा कोई टॉपिक जो मुश्किल लगता है आपको या उसको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है, वो सब एक ही दिन में आप इकट्ठा कर लेंगे और एक तो आप मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन दूसरे के लिए हो सकता है आपको उतना टाइम ना बचे या आपके अंदर उतनी एनर्जी ना हो, आपका दिल कर रहा हो कि कुछ आसान चीज़ें साथ में कर लूँ, तो फिर जब वो कंप्लीट नहीं होगा तो आपको स्ट्रेस होगा. सो डोंट क्लस्टर देम टुगेदर. आप डेली बेसिस पे उसको इस तरीके से जब आप स्केड्यूल करेंगे ना, जब आप अपनी टू डू लिस्ट बनाएंगे और अपनी वीकली टू डू लिस्ट बनाएंगे, मंथली टू डू लिस्ट बनाएंगे, आपके पास 3 मंथ्स हैं से, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली जब आप स्केड्यूलिंग करेंगे देन आप उसको बहुत ईजीली स्प्रेड आउट कर सकते हैं. Now coming to the third hack is that you need to priority schedule your tasks. आपने prioritize करना है अपने टास्क को. You identify the topics that you find most challenging and allocate more time to them. More important things should come first and then followed by the less important ones. The fourth hack is time blocking. So during the day, designate specific time slots for studying, for breaks, for relaxation. Like कुछ लोग बहुत early morning बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं. हर स्टूडेंट को अपना पता होता है कि वो किस टाइम पे ज़्यादा अच्छा पढ़ सकता है. वैसे तो जो फजर का टाइम है, फजर के टाइम से लेके दोपहर 12 बजे तक का टाइम मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम होता है. बीच में आप पढ़ें और साथ में ब्रेक्स भी लें. लेकिन कुछ बच्चे रात को ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं तो वो रात को पढ़ लें. फिर आई वुड सजेस्ट कि अगर आप नाइट टाइम स्टडी रूटीन को प्रेफर भी करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी आदत बनाएं कि आप डे टाइम पढ़ना शुरू करें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम डे टाइम में होना है. और अगर आपकी ब्रेन को आदत हुई हुई है कि वो डे टाइम पे सोने की आदत हुई हुई है उसको और रात को जागने की आदत हुई हुई है, तो वो MCAT एग्ज़ाम वाले दिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसका सर्केडियन रिदम आप चेंज कर चुके हुए हैं. सो ट्राई, अगर आपको अभी 3 मंथ्स हैं तो आप इस मंथ चलें, अगर आप कर भी रहे हैं रात को जाग के पढ़ भी रहे हैं, या आप ये कर लें कि वीकेंड्स पे रात को जाग लें, तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन इस तरीके से बनाएं कि आप फजर पढ़ें और उसके बाद पढ़ाई पे बैठ जाएं. वो बहुत बरकत वाला भी टाइम होता है और बहुत आसानी से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स आप इसको आजमा के देख लें कि जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, जो ऐसे चैप्टर्स या टॉपिक्स हैं जिन पे आपको बहुत टाइम लग रहा होता है, अगर आप फजर के टाइम पे उनको पढ़ेंगे तो ऐसी बरकत होती है उस टाइम पे कि वो बहुत फटाफट से हो जाते हैं. अच्छा, टाइम ब्लॉकिंग में जो आपने अपनी रेस्ट और रिलैक्सेशन का टाइम रखना है लाजमी, एंड इट विल हेल्प यू टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड इट विल ऑल्सो प्रिवेंट बर्नआउट. कि आपने बर्नआउट नहीं हो जाना 3 महीने पढ़ के कि बिल्कुल एग्ज़ाम का टाइम आए तो आप बिल्कुल निढाल हुए पड़े हों और बिल्कुल एक्टिव ना हों. ऐसे नहीं करना. आपने रिलैक्सेशन का भी टाइम रखना है, आपने वॉक करनी है, आपने एक्सरसाइज करनी है. खाना खाते हुए आपने बिल्कुल साथ में किताब नहीं रखनी. जब आपने खाना खाना है और हेल्दी फूड आपने खाना है, मैं आपको आगे एक वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगी कि व्हाट आर द ब्रेन स्टिमुलेटिंग हेल्दी फूड्स दैट यू वुड बी हैविंग ड्यूरिंग दिस टाइम. तो आपने जब भी खाना खाना है उसके साथ आपने बुक नहीं रखनी. सुकून से तसल्ली से आप खाना खाएं, रिलैक्स करें, वॉक करने जाएं, अपने बहन भाइयों के साथ भी खेलें. जब आप
टाइम मैनेज करेंगे ना प्रॉपरली, आपने प्रॉपरली गोल सेट किया हुआ है कि मैंने इस मंथ में ये कंप्लीट कर लेना है, आपने टू डू लिस्ट बना ली हैं, यू हैव स्केड्यूल, यू हैव प्रायोरिटाइज्ड और आपने टाइम ब्लॉक्स एलोकेट कर दिए हैं, बिलीव मी आपको हर चीज़ का टाइम मिलेगा। ऐसा आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि आप सिर्फ पढ़ रहे हैं और ज़िंदगी से कट गए हैं। हाँ, कुछ आपने डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट ज़रूर करनी है। दैट इज़ माई 5th हैक। यू हैव टू टर्न ऑफ योर सोशल मीडिया। अगर आपसे बिल्कुल उसको बाय बाय नहीं कहा जा रहा तो एटलीस्ट जब आप पढ़ रहे हैं उस वक्त तो नोटिफिकेशंस बंद कर दें, क्योंकि इधर टिन 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 बेल बजती है, उधर आप फ़ौरन से थोड़ी, चाहे आप यही कहते हैं कि जी मैं 1 मिनट के लिए देख रहा हूँ, लेकिन आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जब वही टॉपिक आप दोबारा स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो फिर आपका टाइम वेस्ट होता है। आपने फ्रेंड्स, फैमिली की ऐसी कमिटमेंट्स जो कि अनइम्पॉर्टेंट हैं उनको आपने नो कहना सीखना है। यू हैव टू पोलाइटली लर्न टू से नो। और डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट करने का एक और तरीका ये भी है कि यू हैव टू सिट एट अ क्वाइट स्टडी प्लेस अवे फ्रॉम लाइक प्रोक्रेस्टिनेशन ट्रैप्स एंड योर फोकस इज एट दैट टाइम विल बी देन सुपर पावर। एक प्रो टिप आपको बता दूं कि लर्न टू से नो टू द थॉट्स दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट, से नो टू द टास्क्स दैट आर नॉट अलाइन टू योर गोल एंड नो टू सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, फैमिली। अगर आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं जो रियलाइज़ नहीं कर रहे कि ये कितना इंपॉर्टेंट टाइम है आपका और आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं, चलो भाई हमारे साथ तुम बाहर नहीं जा रहे, आपको नाराज़गी दिखा रहे हैं, उनको उस वक्त खुदा हाफिज़ कह दें। वो एक्चुअली में आपके फ्रेंड्स हैं ही नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स तो वो हैं जो रियलाइज़ करें कि आपके लिए ये टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह फैमिली की कुछ ऐसी कमिटमेंट्स आपको इन 3 मंथ्स में, लाइक शादी है, कोई आउटिंग है, आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इस टाइम पीरियड के लिए। इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि यू ओवरकम द फियर ऑफ ऑफेंडिंग पीपल। आपके लिए ये 3 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप अगर इस वक्त थोड़ी सी अपनी डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज़ कर देंगे और फोकस करेंगे ऑन द स्टडीज़, और जब आप इंशाल्लाह सक्सेसफुल होंगे, आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, देन यू विल नॉट बी रिग्रेटिंग इट ऑल। 6th hack is the self-care. You all know that a healthy mind and body, they are essential for good performance. आपने सुना है a healthy body bears a healthy mind. So सारा माइंड वर्क है ना आपका, सो आपने अपना ख्याल रखना है, आपने प्रॉपर स्लीप लेनी है, एक्सरसाइज, वॉक, रिलैक्सेशन के लिए टाइम निकालना है, अपनी नमाज़ें बिल्कुल नहीं छोड़नी। हम नमाज को एक इबादत समझते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने ये ऐसी बेहतरीन इबादत हमें दी है कि ये एक फुल मेडिटेशन प्लान है इसके अंदर। सो आपने यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स, एक्सरसाइज, वॉक एंड रिलैक्सेशन टू रिचार्ज योर बैटरीज। एंड द 7th पावरफुल टेक्निक जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है 5-minute रूल। दिस इज़ अ गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजी, दिस 5-minute रूल। अच्छा, ये 5-minute रूल यू कैन अप्लाई इन 2 forms. Like for example, you are feeling unmotivated and you don't want to study. आप फैसला कर लें कि मैंने 5 मिनट तक सिर्फ पढ़ना है। Once you get started, you will find yourself in the flow and wanting to continue. तो आप कंप्लीट कर लेंगे। You have overcome that inhibition कि जो आपका दिल नहीं कर रहा था ना, आपने कहा चलो 5 मिनट पढ़ता हूँ बस। तो आप 5 मिनट जब पढ़ लेंगे, उसको दे देंगे पढ़ाई को टाइम, तो फ्लो पे चल पड़ेंगे। सो रिमेंबर, स्टार्टिंग इज द हार्डेस्ट पार्ट एंड ब्रेक थ्रू दैट इनिशियल रेजिस्टेंस विद दिस 5-minute रूल एंड देन यू वॉच योर प्रोडक्टिविटी सोर लाइक एनीथिंग। सेकेंड एप्लीकेशन 5-minute रूल की ये है कि इफ़ देयर इज़ एनी टास्क दैट कैन बी डन इन 5 minutes, जस्ट डू इट राइट अवे एंड स्ट्राइक इट ऑफ फ्रॉम योर टू डू लिस्ट, एंड सो दैट योर बर्डन लेसन्स। जो आपने डेली टू डू लिस्ट बनाई है, जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि आपने मोस्ट चैलेंजिंग टास्क पहले करना है, उससे भी पहले आपने 5-minute टास्क अगर कोई उस दिन के हैं तो वो आपने कंप्लीट कर देने हैं। इट विल बूस्ट योर मोटिवेशन, इट विल रिड्यूस योर स्ट्रेस ऑल्सो, एंड यू विल बी एबल टू फोकस मोर ऑन योर स्टडी टास्क दैट डिमांड मोर टाइम. So do follow these 7 time saving hacks, and they are
टाइम टेस्टेड ऑल्सो, मैंने ख़ुद इनको अपनी लाइफ में अप्लाई किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तमाम इम्तहानात, चाहे वो MD कैट का था या मेरे प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स थे MBBS के या मेरे फेलोशिप और स्पेशलाइजेशन के एग्ज़ाम्स थे, वो सब मेरे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट अटैम्प्ट में और बहुत अच्छे स्कोर्स के साथ मैंने किए। इंशाल्लाह आप भी इनको अप्लाई करें एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। टिल द नेक्स्ट वीडियो, हैप्पी लर्निंग। लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकॉन प्रेस ज़रूर करें ताकि ऐसी ही मुफीद वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।